Assalamu alaikum. Welcome back to Oxford Pharmacist Mariam. Today we will be discussing about the chapter 4 of the Drug Act 1976 that was implemented as the 31st of the 1976, 11th May 1976. चले without any delay हम start करते हैं इसका chapter 4 that would be discussing about the penalties. Chapter 4 में क्या क्या हम देखेंगे? Offences, penalties and the procedures. उन penalties का procedure क्या होगा? Offences होगी, अगर ऑफेंसेस होगी तो उनकी पेनल्टीज क्या क्या होंगी। सो पहली पेनल्टीज देखते हैं जो कि अंडर द पंजाब सॉरी पाकिस्तान पाक एक्ट ड्रग एक्ट 1976 में दिया हुआ है। पेनल्टीज: whoever himself or by any person on his behalf export, import, manufacture or for the sale of the sale of the any spurious drugs or any drug that is not been registered, तो उसकी पेनल्टी। और manufacture for the sale of the drug without a license, तब and import and without license यानी स्मगल करता है any drug for the import for which the license is required shall be punishable and the imprisonment in तीनों condition में export, import और manufacture of the unlicensed drug में क्या होगा? Required shall be punishable imprisonment of at least not less than 5 years से लेकर 10 साल तक उसको कैद होगी और उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, यानी उसको जुर्माना जो होगा वो एक्सटेंड हो सकता है टिल 5 लाख रुपीज। और ये भी अमेंडमेंट जो है वो चेंज भी हो सकता है। प्रोवाइडेड एट द गवर्नमेंट ड्रग कोर्ट फॉर द स्पेशल रीजन मे बी रिकॉर्डेड अवार्ड फॉर द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसकी लेस देन 3 इयर्स भी कर सकती है। ये भी हो सकता है कि स्पेशल कंडीशन की वजह से उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है, उसकी जो कैद है वो 3 साल से कम भी कर सकती है। दूसरा देखते हैं सबसेक्शन: whoever himself or by the other person here in behalf import, manufacture or sale or sell any intimate product, yeah, gives or to the purchase, sale, a false warranty to the in respect of the drug sold by which the drug does not in any way contravene the provisions, या फिर वो कोई false warranty के साथ वो drug जो है वो सेल करता है and it is not proof is not able to prove that when he gave the warranty and he has good and sufficient reason to believe that this is same and it is true, or in the case he applies to permits he applies the permits to be applied or any of the drugs sold or stock or exhibited for the sale by which the whether the container or the label of the drug of the manner, इसमें वारंटी जो है उसके ऊपर जो लिखी हुई है, यानी वो विदाउट परमिशन जो है वो ड्रग को स्टॉक जो है वो ड्रग सोल्ड या फिर कर रहा है ये सब कुछ इसमें, और इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर फॉर द सेल ऑफ द सेल ऑफ द ड्रग अंडर द नेम ऑफ दैट ड्रग, मगर वो जो सारी ड्रग्स होंगी वो क्या होंगी? इंटीमेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर फॉर द सेल ऑफ द सेल्स एनी ड्रग विद विच एनी सब्सटेंस विच विद नॉट एक्चुअली कंपोनेंट, या उसके अंदर वो कंपोनेंट है ही नहीं, and has been mixed packed so that it reduce the quality or strength, or for which any substance has been substituted wholly as in the part, or is shall be punishable and imprisonment of the as a term of extended to the 7 years, सात साल तक की कैद and fine that could be extended till 1 lakh rupees। उसके अलावा the person whoever obstruct an inspector in the exercise of his power confirm upon the under the act, he disobey the laws authorities of the inspector and he is also punishable, यानी कोई इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोकता है तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। एंड उसकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो 1 साल तक हो सकती है एंड और द फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू द 10,000 रुपीज और बोथ। फिर क्या है? अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, यानी वो क्या क्या कर रहा है? एक तो पहले वो क्या कर रहा है? विदाउट लाइसेंस ड्रग सेल कर रहा है। दूसरा, वो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन जो वो ड्रग जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉल्स ड्रग, या वो इंस्पेक्टर को उसका काम करने से रोकता है, यानी वो जो तीन है जो है वो ऑफेंसेस परफॉर्म कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्रावेंशंस, एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or any rules, he would be punishable or the implementation of the term by which the extent 5 साल तक की उसको कैद एंड
और फाइन ऑफ एक्सटेंडेड, जो कि उसका फाइन एक्सटेंड हो सकता है कितना तक, 5,000 तक। आगे आ जाती है पेनल्टी फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यानी एक बार उसने गलती की, अब वो बार बार वही गलती कर रहा है, उसकी केस में क्या पेनल्टीज होंगी। whoever having been convicted of an offense under section subsection 1 of the section 27 again, यानी वो दोबारा दोबारा लाइसेंस के बगैर जो ड्रग है या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, या सेल कर रहा है, of the subsequent offense under the subsection, and shall be punishable with imprisonment of the life, and the imprisonment shall not be less than 5 years, या उसको 10 लाख रुपए तक की जो है वो कैद हो सकती है। उसको पूरी जिंदगी की कैद भी हो सकती है, या उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की कैद भी हो सकती है। और whoever having been convicted of an offense under subsection 2 in the section 27, यानी वो जो है वो गलत दवाई जाली दवा बेच रहा है, इज कन्विक्टेड ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, और बार बार वो ये सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहा है, अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ अ टर्म, एंड शैल बी, कितनी इम्प्रिजमेंट होगी उसको, 2 साल तक की उसको कैद होगी, और 2 से 3 साल तक से उससे कैद होगी, और वो जो उसकी कैद है वो एक्सटेंड हो सकती है टिल 10 years, और उसको जो है वो 2 लाख तक की उसको जो है वो, ये दोनों, यानी 2 से 10 साल की उसको कैद हो सकती है, या 2 लाख का जुर्माना हो सकता है, या 2 लाख रुपए जुर्माना, और 2 से 10 लाख, 2 से 10 साल की उसको कैद दोनों हो सकती है। और अगर whoever have been convicted of an offense under subsection 4, यानी वो तीनों सबसेक्शन की जो ऑफेंसेस है वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, उसको सब्सिक्वेंटली कर रहा है, of the subsequent offense under the subsection shall be punishable with the imprisonment of a term which may extend to the 7 years, उसको 7 साल तक की कैद, एंड उसको जो पनिशमेंट हो सकती है वो फाइन 1 लाख रुपीज तक हो सकती है, या दोनों हो सकती है। आगे आता है फोर फीचर्स। फोर फीचर क्या होता है कि किसी चीज को जब्त कर लेना या कब्जे में ले लेना, they that belong to you, but it is the hold of that, इट इज ऑन होल्ड, वो किसी रीजन की वजह से ऑन होल्ड चली गई है, किसी जो है वो ऑफेंस की वजह से उसको फोर फीचर कर लिया गया, उसको ऑन होल्ड ले लिया गया है। व्हेन एनी पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट of contravening such provisions of the act or any of the rules may be prescribed in the behalf of the drug court, may order that the stock of the drug or the subsequent by the means of which of the relationship of the offense of the combining of anything similar nature belongs to the possession, यानी कोई भी ड्रग एक्ट की वो जो चीज है उसको कंट्रामीन कर रहा है, इफ सच कंट्रामीशन इज पनिशेबल, और वो कंट्रावेंशन जो है वो पनिशेबल है इन अंडर द सेक्शन 1 से लेकर 27 तक, any implemented use for the manufacture or the sale for such of the drug, receptacles, packaging, covering, or any of the which drug which contain animal, vehicles या vessels या conveyors जो थे उसके use for the carrying of the drug would be forfeited, कब्जे में ले लिया जाएगा by the federal government, or in case of the provisional government upon such of the make the drug substances implement receptacles, receptacles, packaging, covering, उसकी animal, उसके vehicle, उसके vessel, उसके conveyance would be forfeiture and may be disposed of as that the government may direct, और उसको dispose of भी कर सकते हैं, ये according to the government जो है वो डायरेक्शन होगा। विदाउट प्रेडिजियस, यानी कोई भी किसी को हार्म या जो है वो डैमेज किए बगैर, of the provision of the subsection 1 when the drug court is satisfied on the application of the inspector or otherwise of any other inquiry may be necessary that a drug contravenes the provision of this drug act, may order that such drug is forfeited to the federal government, or as in the case the provisional board upon such hidden made such drug may be destroyed or otherwise disposed of by the government may direct। तो ऐसी ड्रग्स को जो कि कंट्रावीन कर रही हैं रूल्स को, उनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है या डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है बाय दी हुम, बाय दी प्रोविजनल गवर्नमेंट और बाय दी फेडरल गवर्नमेंट। आगे है इंस्पेक्टर शैल रिलीज एनी ड्रग आर्टिकल article of drug sized article size by which under this act when he is satisfied that all the provisions of the act and the rules with respect to there have been complied, जो है वो अपना आर्टिकल जो सीज है वो रिलीज कर देगा
और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जितने भी रूल्स कंट्रावेंशन हो रही थी उनको अब उसने खत्म कर दिया है। नॉन रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी होता है और रिकॉग्नाइजेबल ऑफेंस भी होता है। आगे हम देखते हैं कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस। कॉग्नाइजेंस ऑफ द ऑफेंस देखते हैं कि ऑफेंस कितना सीरियस है। कॉग्नाइजेंस क्या होता है? seriousness of the offense. Such as the provision of the section 19, no prosecution shall be instituted under this chapter except by a federal inspector. कौन करेगा? By a federal inspector. The prosecution is in the respect of the contravention of the clause and the subclause of the section 23 or 24 and any provision of the act in the rules of the import or export or the manufacturing of the sale shall be performed at the timing registered the manufacture and the sale of the license. वो देखेगा कि लाइसेंस की जो सीरियसनेस है वो कितनी ज्यादा है। सो और फेडरल जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी कर सकती है, जो प्रोविजनल इंस्पेक्टर वो भी कर सकता है। Provided that where the public interest is required, the federal inspector may, with the prior permission of the federal government, institute a prosecution for contravention of any of the provision of this drug। जो फेडरल गवर्नमेंट होगा, इंस्पेक्टर होगा, वो उसके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देगा। और notwithstanding in anything contained in the code of the criminal procedure, क्या होगा? An offense punishable under this chapter or other than the offense mentioned in the subsection जो होगा shall be non cognizable। नॉन cognizable क्या होता है? नॉट सो सीरियस ऑफेंस, can't arrest without court and magistrate order, can't have an FIR। so these are the offense punishable under this chapter and offense mentioned in the subsection 1। यानी इस पे कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई एफआईआर नहीं की जा सकती, बट उसको पनिश किया जा सकता है। Okay, no court other than the drug court shall prior to offense punishable under this law। अच्छा, अब कोई भी offense जब किया जाता है अगेंस्ट द ड्रग एक्ट 1976 तो ड्रग कोर्ट के अलावा कोई भी उसकी जो हायरिंग है वो नहीं कर सकता, और कोई भी उसको ऑफेंस पर पनिश नहीं कर सकता कोई और ड्रग कोर्ट के अलावा कोई कोर्ट उसको पनिश नहीं कर सकती, सिर्फ ड्रग कोर्ट ही करेगी। और जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं लाइक मर्डर और किडनैपिंग, इस पर डायरेक्ट पुलिस एफआईआर होती है और फिर डायरेक्ट जो है वो अरेस्ट करते हैं और विदाउट वारंट और ड्रग ऑर्डर। और जो कॉग्नाइजेबल नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होते हैं जो कि इतने सीरियस ऑफेंस नहीं होते, उस पर अरेस्ट नहीं कर सकते और मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर और उसके ऊपर एफआईआर भी नहीं कर सकते। आगे है नथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर शैल डीम इफ प्रिवेंटेड एनी पर्सन फ्रॉम बीइंग prosecuted under any of the drug law, a mission of the constitution, an offense punishable under this chapter may be required। The transfer of the drug court of any of the case may be pending by the court immediately before the establishment of the drug court। For example, इससे पहले कोई कोई भी था, कोई केस था रिलेटेड टू दी ड्रग, मगर तब ड्रग कोर्ट नहीं थी, तो अब वो जो कोर्ट जो केसेस होंगे वो हम ट्रांसफर कर देंगे ड्रग कोर्ट में। नथिंग कंटेन दिस चैप्टर शैल बी डीम्ड इफ प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम बीइंग prosecuted under any of the laws of the mission from the consequent on the offense punishable under this chapter to require transfer the drug court of any case which is being pending in any court immediately before the establishment of the drug court। आगे आती है ड्रग कोर्ट क्या होता है। The federal government may, by the notification of the official gazette, establish as many drug court as it considered necessary, where it is established more than one drug court shall specify the notification on the territorial limits। अगर एक से ज्यादा ड्रग कोर्ट्स हैं तो उनकी टेरिटोरियल लिमिट सेट कर दी जाए, विद इन विच ऑफ द क्लास ऑफ द केसेस in respect to which each of these shall be exercise is jurisdiction। और वो हर जो ड्रग कोर्ट होगी वो अपने एरिया में जो होगी एक्सरसाइज करेगी ड्रग कोर्ट को, और वहाँ पे jurisdiction जो अंडर द एक्ट जो है वो परफॉर्म करेगी। The drug court shall consist of the person who is has been a qualified for appointment as a judge of the high court। यानी उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट हो सकता है। who shall who shall be the chairman with the two member of being the person। जो कि हाई कोर्ट जो कि जज होगा वो उसका चेयरमैन होगा और उसके अलावा दो पर्सन और भी होंगे।
who in the opinion of the federal government an expert of the medical pharmaceutical field। और वो दोनों कौन होंगे? एक्सपर्ट इन दी फार्मास्यूटिकल फील्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि जो और वो क्या होंगे, वो जो टू एक्सपर्ट्स होंगे वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मेंबर हो सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, डीन्स हो सकते हैं, हाजिर सर्विस। और वो जो हमारा जो जज होगा, जो कि फार्मेसी को इतनी बेहतर तरीके से नहीं जानता और ड्रग कोड को इतना नहीं जानता, ड्रग लाइसेंस ड्रग एक्ट को इतने बेहतर तरीके से वो नहीं अंडरस्टैंड करता, उसके जो है वो मुआवनत के लिए, उसकी हेल्प के लिए होगा। और उसकी जो मेंबर्स होंगे जो ड्रग कोर्ट के होंगे वो टोटल 3 होंगे। और कोरम फिल करने के लिए 3 में से 2 जो होंगे वो जरूरी है। उसमें जो चेयरमैन होगा और कोई एक जो उसके साथ जो मेंबर होगा, उसकी जो है ना कोरम के लिए फिल्म करने के लिए जरूरी है। तो 2 में से 3 जो है इसका कोरम है, 2:3। Provided that the deciding application on the bail of the chairman, any of the members shall constitute of the full quorum of the drug। एक तो यहाँ पे चेयरमैन प्रेजेंट हो और एक एनी मेंबर हो टू फिल द quorum। A drug court shall sit at such places or the places with the federal government as in the case of the provisional government may be direct। जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट कहती है वहां पे फेडरल ड्रग कोर्ट होगी, जहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट कहती है वहां पे प्रोविजनल ड्रग कोर्ट सेट कर देंगे। अ ड्रग कोर्ट शैल हैव बीन have all the powers conferred by the Code of the Criminals Act 1898 on the Court of the Session exercising the original jurisdiction। A drug court shall not merely by reason of a change in its composition जो है वो be bound to recall and hear the witness who has been evidence have been already available और recorded है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मेंबर ऑफ द जो ड्रग कोर्ट है वो चेंज हुआ है। अब जो पुराने जो थे हेयरिंग्स चल रही थी, क्या उनकी जो एविडेंस भी जो थे वो आ गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो क्या वो दोबारा उनको बुलाएगा और कहेगा कि अपने आके एविडेंस या अपने आके गवाही दो? नहीं। और जो एविडेंस होंगे वो ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग जो है जो नेक्स्ट मेंबर आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी जो जो ड्रग कोर्ट के जो फैसले हैं वो लेंगे। अ ड्रग कोर्ट शैल अंडर कोर्ट शैल हैव द पावर ऑफ conferred कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ड्रग कोर्ट इज नॉट मेरली द रीजन कि कोई भी एक पर्सन चेंज हुआ है तो वो दोबारा जो है वो हियरिंग स्टार्ट करे उस विटनेस की, उस रिकॉर्ड अवेलेबल में ही वो अपना फैसला देगी। अ ड्रग कोर्ट शैल इन ऑल मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच नो प्रोसीजर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट followed by the procedure of the dose of the criminal code of the criminal procedure 1898 for the trial of the summon case of the magistrate। तलब करने के लिए जो ड्रग कोर्ट वाले जो बुलाएंगे, for the trial summon of the case of the magistrate के लिए जो बुलाएगा वो होगा ड्रग कोर्ट शैल with respect and with no procedure prescribed जो होगा for the trial of the summon of the case of the magistrate उसको कॉल करेगा। A person sentenced by the drug court any prefer an appeal or to a bench of the high court consisting of not less than 2 judges with 30 days of the judgment। एटलीस्ट 2 लोग जो है वो 2 जजेस वहां पे मौजूद हो और विद इन 30 डेज उसकी जजमेंट जो है वो दी जाए, जो ड्रग कोर्ट में जो भी अपील आती है। The provision of the section 5 and 12 of the limitation of the act shall applicable and the appeal shall be within the section 14। जो पर्सन सेंटेंस बाय द ड्रग कोर्ट है प्रेफर टू अपील, अगर जो पर्सन है जो ड्रग कोर्ट से जो है उसको क्या हुआ है उसको जो है सेंटेंस कर दिया गया है, उसको सजा सुना दी गई है, अब वो क्या करेगा, वो अपील करेगा और टू द बेंच ऑफ हायर कोर्ट के बेंच को जो कि ड्रग कोर्ट का बेंच होगा उसको अपील करेगा। और विद इन 30 डेज अपनी उसकी जजमेंट जो होगी उसकी जो होगी उसको देखेंगे। एंड द प्रोविजन ऑफ द सेशन बाय द 5 एंड 12 लिमिटेशन एक्ट 1908 shall be applicable appeal referred by the subsection 7। आगे आते हैं प्लीज। प्लीज किसे कहते हैं? कि वो आदमी कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे इस ऑफेंस का पता ही नहीं था और मैं विद नाउनली या मुझे मैं अपनी ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज ये जो ऑफेंस था ये परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए मुझे माफ कर दी जाए। जो पुलिस होते हैं उसमें इस केस की जो इस तरह की जो रीजंस होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। Save as hereafter provided the section, it shall be no defense for the prosecution under this act merely
with that accused was ignorant of the nature and substance of the quality of the drug. या तो उसको पता नहीं था कि वो कोई जो है वो इग्नोरेंट था नेचर ऑफ द ऑफेंस से, या उसको पता नहीं था कि वो जो सब्सटेंस है वो किस क्वालिटी का है और उसकी क्वालिटी भी क्या होती है। कुछ एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मगर उसने कमिट कर दिया, उस एक्यूज के बेस पर उसको प्रोसिक्यूशन से नहीं बचाया जा सकता, डिफेंस नहीं मिल सकता। और ऑफ द सर्कमस्टांसिस of its manufacturer or importer, or shall be purchaser having bought only for the purpose of the test of analysis and have been prodigious for their sales। आगे जाता है, a drug shall not, टू टू पॉइंट इसका प्लेस का, a drug shall not be deemed to be misbranded, adulterated or misbranded or substandard only for the reason that the fact that there has been added there to some innoxious substances or the ingredient because the same is required for the manufacturing or the preparation of the drug fit for the carriage of the consumption, to not to increase the bulk, weight and measure of the drug but to conceal its inferior quality or other defects, thereby the decomposed substances which result in the natural processes of the composition। यानी कोई उसके अंदर ऑफेंड सब्सटेंस या नोक्शियस सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, उसको मिस ब्रांडेड अडल्टरेटेड या सब्सटेंस बना दिया, और उसके अंदर उसकी बल्क क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए या उसका वेट इंक्रीज करने के लिए या उसकी मेजर ऑफ द इंफीरियर क्वालिटी को कंपनसेट करने के लिए उसके अंदर जो है वो एडिशन किया गया किसी सब्सटेंस का, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ, वो जो प्रोडक्ट थी वो डिकम्पोजिशन की तरफ चली गई। प्रोवाइडेड दैट such decomposition is not due to any of the negligence of the part of the manufacturing, वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुई, बट इट इज ड्यू टू द ड्रग ऑफ द डीलर, देयरफॉर इट शुड बी not rendered to the drug injurious to the health and it should not be the substandard। अब जो ड्रग बनी थी जो मैन्युफैक्चरिंग था वो सब स्टैंडर्ड नहीं थी, उसका जो डीलर था उसने उसकी हैंडलिंग के दौरान उसके अंदर जो है उसके अंदर अडल्ट्रेशन की जिसकी वजह से वो सब स्टैंडर्ड हो गया। अब पर्सन, अब आगे उसके बता गया कि इस पुलिस की जो ऑफेंस में उसको क्या क्या जो है वो जो है वो करना पड़ेगा। अ पर्सन नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग ऑफ इस एजेंट, मगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, शैल नॉट बी लायबल ऑफ द कंट्रावेंशन, वो उसकी कंट्रावेंशन के लायबल नहीं होगा क्योंकि वो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो वो इस के लायबल नहीं होगा कि उसके खिलाफ हम ये जो है वो पुलिस के खिलाफ उसके खिलाफ एक्शन लें। so that he did not know that he could not with reasonable diligence careful have the ascertained that the drug is any way contravened of the provision of the drug act while the same possession have been remaining the same when the acquired। अगर B है, when when he acquired the drug from the daily license manufacturer, उसने daily manufacturer से ली of its authorized agent or the importer or the indentor of the resident of the Pakistan under the written warrantor and the prescribed section sitting on the particular and the batch number or drug sign, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ था। The drug does not in any way contravenes of the provision of the section 23 of the drug while in the possession was properly stored and remained in the same state and as when he acquired it, the drug has been manufactured and manufactured holding valid license of the manufacturing of the drug permission for the drug। यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक हुई, उसका वारंटर भी रिटर्न था, उसकी जो स्टोरेज कंडीशन थी वो भी सेम थी, उसका वैलिड लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी है। इस केस में वो जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको जो होगा नहीं पूछा जाएगा फॉर द इंटरवेंशन, या फिर जहां से उसने he did not know that he could not be reasonable for the diligence, उसको क्या केयरफुलनेस जो है वो शो करनी चाहिए। वारंटी में क्लेम होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज है। प्रोवाइडेड इज द डिफेंस अंडर द रूल, डिफेंस अंडर द रूल क्या होगा, इफ ही हैज विद इन 7 days of the services of him of his summon sent to the inspector a copy of the warranty, अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर वारंटी कॉपी भेज देता है इंस्पेक्टर को विद इन द रिटन नोटिस ऑफ द स्टेटिंग, जब उसको रिटन नोटिस पुलिस का मिला और उस ऑफेंस का मिला एंड टू दैट इंटेंट टू अप्लाई टू सच ऑफ द गिविंग, और अब जो होगा वारंटर को वो पकड़ा जाएगा, अब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। एंड इफ ही प्रूव्स दैट ही हैज विद इन द सेम पीरियड sent written notice such as the intentions
इंटेंशन टू द से टू द वारंटर, या उसने वारंटर को क्या दिया है कि मुझे तो जो अब चाहिए है वो कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से रिटर्न में वारंटी लेना है। तो उस रिटर्न सेड वारंटी को कि मैंने उसको वारंटी के लिए बोल दिया कि मुझे वारंटी प्रोवाइड करें, उसकी जो रिटर्न नोटिस होगा वो भी वो प्रोवाइड कर सकता है, या वो 7 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से वारंटी लेकर जमा करवाए। ताकि फार्मेसी वाले का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आगे जाता है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द कस्टम्स ऑफ द पावर्स। Application of the law relating custom and power offices of the customs. Uh, the laws for the time being is force relating to the custom on the good of to import और export देख रहा होता है। custom क्या देख रहा होता है? import and export of देख रहा होता है सारी। The laws of the time being in the force of relating a custom and to the goods to be import from which the prohibited, यानी जो import जिनकी prohibited की गई थी under the custom act 1969, uh, uh, shall subject to the provision of the section 27 of the act applied for the respect of the drug। अगर वो import हो रही है तो official the prohibited है, हालांकि वो the officer of the customer and the officer of the to whom if any of the function of the officer of the custom जो है वो की जाएंगे, तो he would be the interested person under the said act shall have the same power of the respect of the drug as have the time of the respect of the goods of the offer said। So, without the prejudice, the provision of the subsection, an officer of the custom or the federal inspector or any of the person of maybe will be authorized by the federal government on this behalf may detain any imported packages which has suspected to contain any drug, दी इम्पोर्ट प्रोविच जो कि उसकी इम्पोर्ट जो है प्रोहिबिट की गई है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी ऑथराइज पर्सन उस चीज को जहाँ पे उसको लगता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है जिसकी इम्पोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड है, and shall forthwhile repeat such detention to the licensing authority, and if is required it forward the packaging for the sample of any of the suspected drug found in therein to the lab to specify by it। और उसका जो सैंपल होगा वो किसी लैब में भेजेगा ये स्पेसिफाई करने के लिए कि क्या इसके अंदर वो ड्रग है जो बैन है या नहीं है। आगे आ जाती है ऑफेंस बाय द कंपनीज। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो वो कौन डील कर रहा होता है? where the person guilty for the offense under the act is a company या कोई कॉर्पोरेशन या फर्म है, इंस्टीट्यूशन है, और एवरी डायरेक्टर पार्टनर और उसका एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और द कॉर्पोरेशन ऑफ द फर्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन वुड बी द गिल्टी। उसके खिलाफ जो होगा ऑफेंस जो है एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा इन द ड्रग 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 कोर्ट। आगे था पब्लिकेशन ऑफ द ऑफेंस नेम, जो ऑफेंस कर रहा होगा उसका नेम पब्लिक किया जाएगा मुजरम साबित होने के बाद। अपनी अखबार के इश्तिहार में वो जो है ना इश्तिहार देगी अखबार के अंदर, और पैसे भी उसके होंगे जो कि फंडर होगा। इफ एनी ऑफ द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज शैल बी अनलॉफुल ऑफ द ड्रग कोर्ट और द कोर्स ऑफ द ऑफेंड नेम, उसका प्लेस, उसका नेम, उसका रेजिडेंस, उसने जो ऑफेंस किया है वो कन्विक्ट जो किया है वो, उसकी पेनल्टी inflicted upon the published at the expense of that person in the newspaper in the manner as the court direct, कि वो उसकी सर्कुलेशन जो है अखबार की कितनी होनी चाहिए एज दैट द कोर्ट जो डायरेक्ट करती है, उसकी बेस पर उसी के पैसों से उसका नेम, उसका फेंस, उसकी रेजिडेंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नेम जो है वो अखबार में पब्लिश होता है। The expense of such publication shall be recoverable from the same manner as in the fine recoverable। उसको फाइन भी होगा और उसका जो उसी फाइन के अंदर से उसको जो अखबार के अंदर इश्तिहार है वो भी दिया जाएगा। आगे आता है पावर ऑफ एग्जाम। मुस्तस्ना किसको को किया जाएगा? फ्री फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, वेवर फ्रॉम द रूल्स ऑफ अ ड्रग। कैसे किसी को जो है वो अंडरसीड या प्रोसीड कर देते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द रूल्स, notwithstanding anything contained in the Drug Act, the federal government may, it is of the opinion of the public interest, so required at any time it is on motion or representation to be made by the by the modification a notification of the official gazette exempt any drug or the class of the drug from being operation of any of the provision of the act, they subject to the condition and for the specified period or yeah, specified notification के through।
इन स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन गैजेट के थ्रू कोई ड्रग या क्लास ऑफ द ड्रग उसने ड्रग एक्ट की प्रोविजन से जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी। अब वो जो है उसकी उस ड्रग में एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर कोई भी ड्रग एक्ट का रूल जो है वो नहीं लागू होगा, और उसके ऊपर कोई भी जो है वो लॉ है वो नहीं फॉलो होगा। तो अब वो फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ द ड्रग एक्ट 1978 जो है 1976 जो है वो काम करेगा। आगे इंस्पेक्टर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और उनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है on behalf of the either federal on the behalf of other uh, provisional. Every inspector shall deemed of the public servant within the meaning of the section 21 of the Pakistan Penal Code, and shall be officially subordinate and such authority of the government appointed the person specified on the behalf. आगे इंडिमिटी आ जाती है। इंडिमिटी आ जाती है इंश्योरेंस, सिक्योरिटी या इम्यूनिटी। एग्जाम्प्ट सच एज दी otherwise expressly provide in such act no suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the government or any other authority or the person anything which is done in the good faith and intended to done under the act or any rule। यानी उसने कोई काम किया है विद इन द लिमिट ऑफ द ड्रग एक्ट, या उसने कोई लीगली प्रोसीडिंग की है, या अगेंस्ट द ड्रग एक्ट अगर उसने कोई प्रोसीडिंग किया, बट उसकी जो फेथ थी वो अच्छी थी, गुड फेथ के अंदर उसने वो काम किया है, तो उसको इंडिमिनिटी मिल जाएगी, उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी फ्रॉम एनी पेनल्टी। फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर से जो है हमारे जो शेल नॉट बी कॉल्ड एज अ क्वेश्चन, जो सेव होगी, save or as otherwise expressly provided the drug act every order passed by the decision given by any board or drug court or any of the authority of the drug shall be final and shall not be called as question by any of the court or any other authority। ड्रग कोर्ट या किसी ड्रग के बोर्ड ने कोई भी फाइनल स्टेटमेंट या पेनल्टी या फाइनल जो है दे दिया है आपको डिसीजन, तो उसको कहीं भी किसी भी अथॉरिटी के पास या किसी भी कोर्ट में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एपलेट बोर्ड में हाँ उसको अपील की जा सकती है, मगर उसको जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आगे आ जाती है पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट एंड एनालिसिस। जो भी आपके जो भी आपके जो होंगे फेडरल गवर्नमेंट के जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको हम जो है वो पब्लिक करेंगे, क्योंकि टेस्ट फेल हो गया है या नहीं फेल हुआ इसकी एनालिसिस जो है वो हम मेंशन करेंगे। इंग्लिश या उर्दू में दोनों में सर्कुलेट कर सकते हैं। अब हमने न्यूज़पेपर भी देखनी है अपनी, कि न्यूज़पेपर इंग्लिश में भी होगी और उर्दू में भी हो, और उसका जो सर्कुलर एरिया हो वो ग्रेटर होना चाहिए। It has been lawful for the federal government to publish in such a manner as it may deem fit the results of any of the test analysis of any of the drug for public information and pass such order relating to the withdrawal of the drug on disposal of the consideration। फॉर एग्जाम्पल एक जो ड्रग है वो गलत जो है वो उसकी कोई उसके अंदर कोई गलती थी और वो मार्केट में चली गई है, तो उसकी पब्लिकेशन करेंगे ड्रग कोर्ट, जो ड्रग हो कोर्ट होगी वो उसकी पब्लिकेशन करेगी थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट इन दी न्यूज़पेपर कि इस प्रोडक्ट को विड्रॉ करना है, ड्रग बैक टू द मैन्युफैक्चरर लाना है, या उसके उस बैच को वापस लेकर आ जाना है, और या फिर उसकी सेल को रोकना है या उसकी डिस्पोज ऑफ करना है, तो वो भी अखबार में मेंशन करेंगे। The federal government may, if it's considered is necessary in its public interest to do so, the public information about any drug or company or trust analysis in the manner that deems fit any information related to the drug and its use specified circumstances में जो है वो public कर सकती है। Then है cancellation and suspension of the license। cancellation जो होती है वो permanent license खत्म, and suspension होती है for the specified period of the time where any person has been found any contra contraventions any of the provision of the drug act or the rules in the respect of any of the contravention of the nature, import export या manufacturing और sale and storage में उसने कोई भी contravention किया in the opinion of the licensing authority or the central licensing board likely to endangered public health, जो कि public health के endangered थी वो contravention, that authority may after giving such person an opportunity of being heard, उसकी एक बार बात पहले सुनेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते देन दे विल कैंसल दी लाइसेंस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सेल्स, या उसको सस्पेंड कर देंगे उस लाइसेंस को फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। जो लाइसेंस कैंसिल होगा इट वुड बी परमानेंट, और जो लाइसेंस
सस्पेंड होगा इट वुड बी फॉर दिस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। आगे आ जाइए कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, where any person has to be found to be contravene any of the provision of the drug or the rules in the respect of any of the registered drug and the registered board after giving after giving such person an opportunity of being heard, cancel the registration of that such drug, suspended or suspend the registration of that specific period of time। यानी इसी तरह ही अगर कोई ड्रग में जो है कंट्रावेंशन अगर वो देखते हैं तो जो ड्रग रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगी, जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड होगा, वो उसको पहले एक बार सुनने का मौका मिलेगी, उसको वार्निंग देगी और उसके बाद उसके जो लाइसेंस होगा वो कैंसिल या सस्पेंड कर देंगे। सो बैन ड्रग शुड नॉट अवेलेबल इन द प्रिंसिपल ऑफ द बीएनएफ है, गवर्नमेंट सरमेट है और डिपार्टमेंट ऑफ एनी जो है तो वो सारे के सारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे और अगर कोई कंट्रावेंशन होगी तो उसका अकॉर्डिंग उसको कोई पेनल्टी या उसको जो होगी उसके लाइसेंसिंग जो होगी बैन या कैंसिल कर देंगे या उसको सस्पेंड कर देंगे। आई होप कि चैप्टर 2 है जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। आगे हम इसका चैप्टर 4 देखेंगे। टिल देन Allah Hafiz. Chapter 4 is completed. Kindly subscribe to my channel, Ask Your Pharmacist Mariam. And if you have any query, you can ask in the comment section. And if kindly subscribe to my channel, Ask Your Pharmacist Mariam, and share it with this your circle. यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट टू माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।